उनका कदर करना होगा, वो लोग उनको रियलाइज करना होगा, उन पर उतर आना होगा। तो बहुत सारे ऐसे सूरत हाल हैं जो हमें रास्ते नहीं है। अब मैं जानता हूँ कि उनको लेके सवाल करेंगे, तो फिलहाल मैं एक एक करके उनको यहाँ छेड़ूंगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपके सवाल आ जाएंगे तो कोशिश की जाएगी कि जवाबों के जरिए जो हैं मैं उनको एड्रेस करूं। अगर मुझको छोड़ के बीच बीच में मेरे जो यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साथी बैठे हैं, अगर इन्हें भी इनके महकमों के मुतल्लिक और हमारे मैनिफेस्टो के मुतल्लिक जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं, अगर कोई सवाल होंगे तो प्लीज आप इन्हें भी डायरेक्ट कर लीजिएगा ताकि ये भी आपके सवालों का जवाब दें। बट ओपनिंग रिमार्क्स पे मैं इतना ही कह के अब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन साहब से कहूंगा कि वो इस प्रेस इंटरेक्शन को आगे जो है वो कंडक्ट करें। थैंक यू सर। We will now have the interactive question and answer session. Q&A session will be for approximately 45 to 50 minutes. We want that maximum number of people should get a chance to ask the questions and share their thoughts. So I request that you limit yourself to one question only and keep the question brief and precise. In case we have more time later on, we can have a second round of questions. Please raise your hand if you would like to ask a question, and my colleagues will pass you the mics. I would request that you introduce yourself before asking your question. With your permission, sir, we will now begin the question. Please. You begin with the with landslide mandate. So I don't have basically in last please hold few the mic. years we have moved long distance. I understand it has compromised 12% of market share. The government you are heading has the lowest number of stockers on stores right now. We were Sorry, can I request you to please keep the mic as close to your mouth as possible because I'm struggling to hear your question. that actually so leakage issues that we don't listen. But basically, in last many years, we have passed through. It has been a long distance, long tunnel. So there are issues. I understand the nightmares of a honeymoon after you take over. I understand the issues that you have right now on your table. There are issues on many fronts. Many things have changed. But rather than getting into the economics of it, the politics of it, the politics have changed. I would suggest, I would not ask a question, but Jammu and Kashmir, in any democracy, media is an exercise of democracy. So you essentially have more investment, you require more investment. I don't mean in financial terms, I mean the concerns. In democracy, in comparison to the autocracy, my simple, it is not a question. The question is that how soon, how far from a situation in which the media existed when you were last time. Actually, that is a question easier for you to answer than for me to answer. Where do you find yourselves today compared to I don't answer that. As far as I am concerned, my wish would be to see an open media, to see a media that is able to report facts on the ground as they exist, without any interference, without any pulls or pressures,
without any telephone calls कि ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, इसको वापस ले लो. That is what I would like, and this interaction is a step in that direction. Nobody sitting here, at least as far as I know, has been told what they nobody has been given a slip of paper and asked, ये सवाल पूछ लो. You're free to put your hands up and ask what you like. And I like to this one off again. I can't say that on this scale it will happen all the time, but at least twice a year, if we can have a freewheeling interaction like this without an agenda, without a subject, and without sort of artificially imposed boundaries, maybe that will tell you where the press is today as opposed to my previous term. I mean, I'm often asked, did I learn any lessons from the last term? Yes, this is one of those lessons. Not having enough contact with you was, I think, a price that I paid in the previous government. Therefore, being more open and more accessible to you is something that I will definitely try to do in this term in office. आप माइक पकड़ लीजिए ना, ताकि बाकी भी सुन लें. This is go audio game. NIT expansion in Pulwama, the allegation comes that we organized. So how are you assuring people now these concerns, because the agriculture department already has the productive land expansion. हमारे ये इस सवाल की अपनी अहमियत है और मैं समझता हूँ लोगों की परेशानी, खासकर जमीन को लेकर. हम अपनी जमीन बढ़ा नहीं सकते और ये वो जमीन है जो बहुत मुश्किल हालात में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के हवाले किया और अब उनसे वो जमीन वापस ली जाए. मैं समझता हूँ मुश्किलात, लेकिन तरक्की को भी रोका नहीं जा सकता. People have. Now, to the best extent possible, we will have to ensure that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are non are highly productive. But those that are, we should avoid taking them over for any development projects. अब जहां तक NIT की आपने बात की, ये सही है कि एक वफद मुझे मिलने आया. They are concerned कि उस जमीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं. मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा अगर वहां के लोग NIT नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं और ले लेंगे जहां लोग चाहते हैं. Not everybody is opposed to development here. There are areas where there is unproductive land that can be used for this NIT. So if the people of Pampur or Pulwama or any of those areas collectively, not 5 or 6 people, collectively if the people of that area do not want NIT to be located there, we'll find another location. If we can locate a central university somewhere, if we can locate an AIM somewhere, we'll find place for NIT also. अगर पुलवामा को नहीं चाहिए, कहीं और ले लेंगे. और भी जिले हैं यहाँ पे ना. There are other districts that will welcome it with open arms. I don't want to share. I don't want to take names here. A party not associated with the government. जब पुलवामा में बात हुई, उन्होंने मुझे फोन किया, कहा अगर उनको वहां नहीं चाहिए, मैं आपको जमीन दे दूंगा, मेरे यहाँ छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ लगाइए ये NIT. वैसे भी हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ फिलहाल. So there are places where we can locate this, but we'll have to find a balance between our development needs and also protecting our productive agricultural land. साहब जैसे आपका MP रोहंगा साहब जो लड्डू के सपोर्ट में रिजर्वेशन के लिए और उनको अपोजिशन ने उनका सपोर्ट किया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है?
जमहूरियत है ना। हमने कब, और ये मैंने बार बार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम को लेके आप लोग सवाल करते थे कि ना ये ऑटोक्रेसी है, खानदानी रूल है, यहाँ एक ही बात चलती है और वो जनाब फारूक अब्दुल्ला की है, वहां पे और किसी को बात करने की इजाजत नहीं। मैंने हमेशा कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम में जमहूरियत है, सबको बात करने का अपना अधिकार, अपना हक है। उस हक को एमपी साहब ने इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें भी आप देखिए ना हालात कैसे बदल गए। मुझे वो साल याद हैं जहां पे एहतजाज सोचना भी, करना तो दूसरी बात, एहतजाज की बात करना भी गैर कानूनी समझा जाता था। हमारे घरों पे और गेटों पे ताले एहतजाज करेंगे, इनका चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा। मेरे गेट के बाहर एहतजाज करने के बाद मुझसे उनकी मुलाकात हुई। इससे तो आपको पता चल जाता है कि कम से कम हम लोगों से डरने वाले नहीं हैं, न हम उनसे छुपेंगे। उनके जज्बात हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं जो उनका हक था हमारे पास लाना। लेकिन जहां तक रिजर्वेशन के हवाले से आपने बात की या उनका जो मुद्दा है, मैं तो थोड़ा सा हटके इसमें कहूं। रिजर्वेशन का जहां तक इनका कंसर्न है, उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है। वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे। उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू की गई है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं कि चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा जमीन हमारे लिए नहीं है। हमें तो पहले ये नौकरियां और ये जमीन पहले अपने लिए बचाना होगा, फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे। मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे। लेकिन जो मैंने कहा, दिस प्रोसेस इज बीइंग लुक्ड एट एंड वी विल बोथ happen in parallel, cabinet subcommittee and आपने बात की, चलिए मेरे घर के बारे में चर्चा किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहां पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए, बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, एमपीज को जोड़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहां पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे एमपी साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात होगी। अभी के बाद आपने जो मीडिया को क्लियर किया और साहब आपको पता है मसाइल हालात में इसीलिए इस फैक्ट्री को जिंदा रखा है वो प्रिंट मीडिया है, क्योंकि उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। हमने क्या क्या उन दिनों सहा है, और कितने जो हमारे जर्नलिस्ट के जो अजीज थे वो बेचारे शहीद हो गए। लेकिन एक गरीबी है कि 2017 में जो रेट्स है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, वो अभी भी 75% रेट है, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं इस वक्त यूपी के। अब वही रेट हमें जो प्रिंटिंग देना पड़ता है उसे ट्रिपल हो गया है। इस पर आप जरा देखिएगा, क्योंकि आज हम ये सब जो प्रिंट मीडिया वाले इन्होंने मुझे कहा कि आप ये सवाल उठाए। और दूसरी बात जो सवाल है, क्या आप 2009 और 2015 के बीच में जो आप वजीर आला थे, उसमें और इसमें आप क्या फर्क समझते हैं? जहां तक एडवर्टाइजिंग रेट्स के हवाले से आपने बात की, नोट किया हुआ, सेक्रेटरी जो हमारे अभी अभी आए हैं इंफॉर्मेशन के, राजू साहब, इनसे और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से बात करके जो भी हमें इसमें करना होगा हम कर लेंगे। जहां तक 2014 से पहले और आज मेरे में फर्क क्या है, बाल और ज्यादा सफेद हो गए,
बुढ़ापे की तरफ अब तेजी से बढ़ रहा हूं, क्या बदलाव आया है या नहीं आया है, ये आप जब मेरा ये टर्म खत्म होगा उस वक्त कहिए ना। मैं अपने मुंह से क्या कहूं? मैं तो कहूंगा ना मैं बहुत अब ज्यादा समझदार हो गया हूं और बहुत मतलब काबिल अब हूं, लेकिन मेरे कहने में कोई वजन ही नहीं है। जब आप कहेंगे तो तब मुझे लगेगा कि वाकई फर्क आया है। तो जब 4 साल और 10 महीने लगभग रह गए हैं नए इलेक्शन को, उस वक्त बताइए ना पिछले टर्म और इस टर्म में अगर आपको कोई फर्क नजर आया या नहीं। मुझे थोड़ा सा फर्क फिलहाल मैं आपसे कहूं, मुझे थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। मैं एक मिसाल के तौर पे जो पिछले दिनों बर्फबारी हुई, मैं मान के चलता हूं ना, अगर 2009 शुरू में इस तरह की बर्फबारी हुई होती, मेरा रिस्पांस इस तरह का नहीं होता। डीसीओ को मीटिंगों में शामिल करना, ऑनरेबल एमएलए से फीडबैक लेना, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, ये 2009 में मुझसे नहीं होता। आज हुआ है क्योंकि थोड़ा सा बदलाव तो आ ही गया है। No, they'll be passed now. You put your, as the direct information sub said, just put your hand up and it'll reach you. Please pass them the mic. This is the last on the right. Why don't you do one thing? Those of you who want to ask a question, I'm sure most of you have pen and paper with you. Just put your names on a slip of paper, send it up to the direct information. It'll be easier than him looking for your hands, because that becomes a little tougher. Just send up a slip of paper. He'll go through those and call your names out one by one. आप पूछ लीजिए ना। अच्छा उमर साहब, जब 370 को रिवोक किया गया उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट का ये कॉमन रेफरेंस रहा कि मसले कश्मीर अब हमेशा के लिए हल हुआ है, लेकिन आपका जो हाई वोल्टेज कैंपेन था जिसमें लोग जुड़े, उसमें आपने कहा कि ये इलेक्शन बिजली पानी सड़क के लिए नहीं है, ये शनाख्त बचाने के लिए, आइडेंटिटी के लिए। तो आप इस वक्त, जाहिर है अभी बहुत कम अर्सा हुआ है, लेकिन मसले कश्मीर अगर हमेशा के लिए रिजॉल्व हुआ है, क्या आप उसे बिलीव करते हैं एज लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी? एक मिनट के लिए अगर हम मान के भी चले ना कि जम्मू कश्मीर का इस तरफ का हिस्सा जो है वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हुआ है, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा सरहद के उस तरफ भी है ना। जब बीजेपी ये कहती है कि मसले कश्मीर का अब हमेशा के लिए हल हो गया है, क्या हम ये मान के चलें कि जो एलओसी के पार वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, उसका भी मसला हल हो गया है? जाहिर सी बात है नहीं है ना। मसला कश्मीर अभी भी है, चाहे सरहद के इस तरफ या उस तरफ, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन मसला हमेशा के लिए हल नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हो। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वो पूछना जो लोगों के साथ चुप रहा है, बिजली का जो इशू है, मतलब हर बार कहते हैं कि कई सारी स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है, बेहतरी होगी, और खासकर विंटर्स में, क्योंकि समर्स में ऑब्वियसली बेहतर होती है, जनरेशन होगी, लेकिन विंटर्स में हर साल यही कहानी दोहराएगा कि अब होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन अभी भी सब जीरो टेम्परेचर है। इस साल काफी हार्ड चल रहा है, लोग काफी सफर कर रहे हैं बिजली को लेके सब जगह, ना श्रीनगर आपने नॉर्थ साउथ की। तो ये ठीक कब होगा? आपने कहा मीटिंग जब 100% होगी, कुछ कहने की मीटिंग जब होगी, तो कोई गाइडलाइन कोई ठीक नहीं है। एक आपसे सवाल और डिप्टी सिंह आपसे सवाल है सर, आपसे हमने बात की जब आपने हल किया था तो काफी जोश में थे आप उस वक्त। तो आज 2 महीने के बाद स्टेट के आसपास बात हो रही है, आपको लगता है जो आपका एजेंडा है पूरा कर पाएंगे आप? जब आपने अंदर जाके हालात देखे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको लगता है आप कर पाएंगे वो, या फिर सब कुछ कभी होगा जैसे? थैंक यू। बिजली के हवाले से आपने सवाल किया, वो सही है। हर बार सर्दियों में हमें इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। हकीकत ये है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल हम ज्यादा बिजली लोगों को फराहम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कट्स की जरूरत पड़ रही है। अनरिस्ट्रिक्टेड अगर हम लोड देखें तो जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा है। फिलहाल 1700-1800 मेगावाट के आसपास जो है हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन
अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो उससे ज्यादा है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये कब तक हल होगा। जितने ज्यादा हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, जितनी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएं, तो कम से कम अगर सर्दियों में उनकी जनरेशन कम हो, गर्मियों में हम वो पावर जो है हम बैंक कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। कोशिश की जाएगी कि हर साल हम ज्यादा बिजली जो है वो बैंक करें, ताकि सर्दी में हम उनके पास छोड़ दें, गर्मियों में वो बिजली जो है हमें वापस मिले। लेकिन मीटरों के हवाले से आपने बात की, ये हकीकत है। फिलहाल हमारे जम्मू कश्मीर के जो AT&C लॉसेस जो हैं वो 50% से ज्यादा हैं। मतलब हर रुपए बिजली जो हम सप्लाई करते हैं उसमें से हम मान के चलते हैं कि 50 पैसे हमें वापस नहीं आएंगे। हालांकि हमारे मुकाबले में जो रियासतें हैं उन्होंने इस नंबर को अब 10, 15, 17% पे उतारा हुआ है। हम आज भी 50% से ज्यादा हैं। तो हमारी भी कोशिश रहनी चाहिए कि कम से कम हम भी 20% से कम अपनी AT&C लॉसेस को लाएं, ताकि और ज्यादा बिजली हम लोगों को सप्लाई करें। इसके साथ साथ हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स बिजली देने का, वो तो तभी होगा अगर मीटर लगा होगा, क्योंकि जहां अग्रीमेंट होगी वहां पे हम यूनिट्स मेजर नहीं करते। हम यूनिट सिर्फ वहां मेजर करते हैं जहां मीटर लगा हो। तो हम जब मार्च के महीने या अप्रैल के महीने में अपना ये स्कीम जो है इसको रोल आउट करना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है जहां जहां मीटर लगे होंगे उन्हीं को इस चीज का फायदा होगा। तो जितना लोग मीटर की तरफ जाएं उससे जम्मू कश्मीर को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन उन्हें भी फायदा होगा मीटर का। डिप्टी CM साहब का अब अनशेड्यूल्ड पावर कट सिर्फ तब होते हैं या तो हमें सिस्टम जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ता है। उसके लिए भी डिपार्टमेंट को कहा गया है कि पूरी तरह से इसको एडवर्टाइज करें, ताकि लोगों को पता चले किस इलाके में कहां पे शेड्यूल के मुताबिक हमें मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ेगा। अनशेड्यूल्ड तब होता है जबकि या तो ट्रांसफार्मर जल जाए या कोई सिस्टम में फेलियर हो। उसमें कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द जो है उसको दुरुस्त किया जाए और बिजली का सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो। आपने डिप्टी CM साहब के कुछ पूछा था कि अब क्या लग रहा है ना, अब उतना ही जोश है। हाउ इज द जोश, शायद पूछा इसने। देखिए, हमें समझ नहीं आती कि ये बार बार आप ये सवाल क्यों हो रहे हैं। मैं उधर भी कहा था, फिर आज कहूंगा, फिर मैंने वही कहा उस समय। जी 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 अभी फिर 20 दिन और है ना। अभी 2 महीने ही हुए, लेकिन एक चीज हम कहें कि जो हमारे लीडर डॉक्टर फारूकुल्लाह साहब और चीफ मिनिस्टर मुर्तजा साहब ने इलेक्शन में हमारी पार्टी ने वादे किए थे, आपको पता नहीं क्यों लगता है कि हम नहीं कर रहे। पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, हमने पहला ही रेजोल्यूशन वहां पे पास किया और कहा कि हमें स्टेट का दर्जा दोबारा दिया जाए, वापस हमारी कोई भी इज्जत हमें बहाल की जाए। दूसरा, हमारी पहला हाउस लगा, पहले हाउस में ही हमने रेजोल्यूशन वहां पे पेश भी किया और पास भी हुआ, जहां हमने कहा कि हमारा खोया हुआ स्टेटस, और जो हम खोया हुआ स्टेटस कहते हैं, ये वादा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का भी है। आपको याद होगा तो पार्लियामेंट के अंदर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जमीन है, जम्मू कश्मीर का रोजगार, हम किसी बात को नहीं रहने देंगे। हम उसी बात को फिर उनको याद कर, इसलिए उन्होंने भी इलेक्शन में कहा था, आपको याद होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब जम्मू आए तो कहा था कि जम्मू कश्मीर जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम आपको आपका जो स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल करेंगे। तो आज 2 महीने हो गए, ये सवाल वहां भी पूछा जाए कि आपने ये वादा किया था, तो उम्मीद करेंगे आप जब वो कभी आएंगे, उनका कोई आएगा, आप उनसे भी पूछेंगे। लेकिन एक बात हम साले से कहते हैं, जो हमने कहा है उस पर बिल्कुल डटे हुए हैं, तो करके दिखाएंगे, और जब करके दिखाएंगे तभी आपके पास आएंगे। थैंक यू। We have received a lot of steps, so I called the names now. Request you all to be patient. We'll try and come to everybody. Ms. Navid from the Indian Express. Hi, sir. Since we're here in the dead of the winter, I wanted to get a sense of state of metering and cabling in JK to check, and also what is it costing the exchequer right now to buy electricity from the local grid. The CS is also here. The pilferage question came up in the sort of in a roundabout way in the answer that I gave.
In terms of the metering, it's an ongoing process. It's part of the Government of India scheme. We are committed to implementing it, and we will. Obviously, the more metering that happens, the less pilferage there will be. That is actually the aim of this, and which is why both the J&K administration as well as the Power Ministry, Government of India, are keen to see these reforms go forward and taken to their logical conclusion, which we will do. The second part of your question was how much is it costing us? What are we spending every day to buy electricity? 9,500 crores a year. 9,500 crores a year is how much we're spending to buy. And if you work on our AT&C losses of just over 50%, you can do the maths. That's what it's costing the exchequer. Mr. Nazir Masoodi from India. Mike, one please. So it has been more than 2 months you have taken over as Chief Minister. Are you comfortable with this dual control system or how it is working? And there have been lots of friction points over the last 2-3 months, including appointment of Advocate General, even also the recent controversy was the declaring holiday on Sheikh Mohammed Abdullah's birthday or the 13th July. How are you going to address these issues which are actually seen an attempt to undermine the elected government? Obviously, dual centers of power are not to anyone's advantage. If a government or any organization with dual systems of power was an effective means of governance or management, you would see it everywhere. The organization you work for, it has a chain of command, but ultimately authority is with one person. Whether it's in government, whether it's in business, whether it's in sport, whether it's in security forces, ultimately systems work better when there is a single point of command. This is one of the peculiarities of a union territory, that dual systems of power are built into the structure, which is why in my opening remarks I did mention that it is a learning period for us, understanding where our authority begins, where it ends, where the authority of Raj Bhavan starts, where it ends. That said, I think some of the prickliness is more a figment of imagination than reality. There have been 1 or 2 areas where there has been a difference of opinion in terms of whose authority it is. But it's not as widespread as you would like to believe it is. Which is why there is an ongoing exercise on the part of the government to I don't know if codify the word is the right word to use, but at least to put into place our TOBR, our business rules, so that if there's any uncertainty or any clarity that is required, that clarity will be built into the system. On our part, the draft of this is being shared with some legal luminaries for their inputs and their suggestions. After it's framed up, then we'll send it in the correct scheme of things. It has to go to the Honorable Lieutenant Governor, and that's what we'll do. I understand that the holidays became a big story. Yes, in an ideal world, we would have liked to have had those 2 holidays because it's part of the emotional attachment we have and it's part of Jammu and Kashmir's history. That said, I don't believe either the martyrs of 13th July or Sheikh Mohammed Abdullah require one day to be remembered. Everything we do in some way is a continuation of their sacrifice for us. Every time a farmer goes out and tills his land or her land, it's part of Sheikh Abdullah's legacy.
every time children go to school and receive a subsidized or free education, it's part of his legacy. This hall that we're sitting in, it was conceived and put into place by him. It's part of his legacy. So his legacy doesn't begin and end on the 5th of December. And similarly, of the martyrs of 13th July. And that's how it is. Please raise your hand so that you can get the mic. भाई मैम आपसे सवाल लेना चाहता हूँ मैम अभी एक ऑर्डर है गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबें जो है वो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक हर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में होगी लेकिन अभी रिपोर्ट आई है कि जो बांडीपुर है वहाँ पे पहली क्लास से लेकर 5th क्लास तक जो बच्चे हैं उनको जबरदस्ती किताबें खरीदी उनको जबरदस्ती किताबें खरीदनी पड़ रही है स्कूल से So with your permission, जैसे आप सब जानते हैं कि एकेडमिक सेशन को चेंज करना पड़ा समर टू विंटर जोन में, उस वजह से किताबें जो हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगा जो अवेलेबिलिटी लाने में, लेकिन जो आप शिकायत करते हैं वो कहीं कहीं हमारी नोटिस में आया हुआ है, क्योंकि किताबें जो हैं टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी जनवरी एंडिंग तक, सारी जो भी बुक्स हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि ज़बरदस्ती की जा रही है कि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, उसके ऑलरेडी जो है एक कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनाई गई है, जोन लेवल पे बनाई गई है कि अगर इस तरह की कहीं पे भी कोई शिकायत हो वो हमारी नोटिस में लाएं, ताकि उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए जो भी एक्शन होगा वो हम जरूर करेंगे। लेकिन आपने बांडीपोरा का नाम लिया है और आप जरूर लिख लीजिए कि किस प्राइवेट स्कूल में। बांडीपोरा में तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अक्सर बेशतर हमारे पास शिकायत आती है लेकिन नाम नहीं आता है। मैं आपके जरिए यहाँ गुजारिश करना चाहती हूँ, नाम जरूर लाइए स्कूल का, ताकि हम उस स्कूल के खिलाफ जो है कार्रवाई कर सके और बाकी जो है वो उस चीज से रुक जाए। शुक्रिया। Hello. Omar Saab, it's been 2 months after you assuming the office of Chief Minister. And what are the promises that were fulfilled by the National Conference that were mentioned in your manifesto? Because your manifesto, when you released it, it became a big hit among people, and that is why they voted for your party. As far as statehood or the restoration, its restoration, Article 370, these are the very big issues, and onus lies completely on the central government when it wishes to restore. But apart from all these issues, what about the other issues? Because people are having a lot of hopes as far as your manifesto was concerned, and that is why we saw that NC wave, because it was given a huge mandate. Look, I think it's important to understand that the National Conference manifesto was based on a 5-year term of government, not 5 weeks, not 5 months, but 5 years. That said, we're also aware that there are certain sort of time frames that we are supposed to adhere. First month, first 100 days, first 6 months, first year. And therefore, some of the things that we had promised may be symbolic, but still important to us. The resolution in the first cabinet meeting for statehood, the resolution in the assembly for special status and constitutional guarantees, the reversal of the school zone. We were actually going to go ahead with the power announcement, but we felt that it was more important to actually focus on increasing the quantum of supply for the first few months, and then go ahead with the free units that we were going to do. But otherwise, in terms of more open and transparent government, this is an indication of that. Public involvement in governance is part of our sort of commitment, which has been evidenced by
our travel into the districts and having the district review meetings to involve public representatives and public delegations in government formation. But the report card that we will give you on the first 100 days, looking at our manifesto and those promises that we are able to fulfill within a UT. Some that we made would require statehood to come back as well. ये जो नया सिस्टम है, तो मगर ग्राउंड लेवल पे जब हम देखते हैं, लोगों को इस बारे में नहीं है कि इनको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके किस हिसाब के पास जाना चाहिए या इनको राजभवन जाना चाहिए। तो क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस सरकार का ना आपके पास है तो ना बैठिए आज पूरा दिन, जो हमें 2 महीने लगे चलिए ना, मैं आपको 2 महीने नहीं लगाऊंगा, आज का दिन लगा लीजिए ना। देखें मैं कौन होता हूं ये कहने के लिए ना कि राजभवन मत जाइए, और शायद आप में से कुछ ये चाहेंगे कि मैं ये कहूं ताकि कल का आपका हेडलाइन यही होगा कि चीफ मिनिस्टर टेल्स पीपल डोंट गो टू राजभवन, जो मेरा कहने का बिल्कुल इरादा नहीं है। जाए ना जहां लोगों को लगता है कि राजभवन हो, चाहे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हो, चाहे ऑनरेबल एमएलएस हो, चाहे हमारे अफसर जो याद कर रहे हैं, जहां भी लोगों को लगता है कि दरवाजा खटखटाने से उनका कोई मुतालबा हल, जैसे मैंने नजीर के सवाल के जवाब में कहा, हम भी इसको थोड़ा सा शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने टीओबीआर जो है वो तैयार करने के लिए। But there is no sort of problem with people going anywhere with their problems. And I don't think there is that much confusion. It's not as if आप घर में नलका लगाना है तो मिनिस्टर को मिलना है, लेकिन अगर घर के बाहर जो है बड़े पाइप को बनाना है तो राजभवन जाने की जरूरत पड़ेगी। There are ministers to deal with almost every department. If there is a problem to do with that department, come and see the honorable minister concerned. शुक्रिया उमर साहब। पहले ये खुशी हो रही है कि 2019 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में हेड ऑफ द स्टेट के पास मीडिया है, सो इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने इनवाइट सबको किया, इन्विटेशन था। तो मुझे याद है कि 2 साल पहले मैंने आपको आपके ऑफिस के बाहर एक सवाल पूछा था और उसका आपने जवाब दिया था कि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी तो 5 साल का हिसाब लिया जाएगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार 5 साल के दौरान जो हमारे पास बजट था, अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जो करोड़ों का पैसा खर्च किया गया डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। एक दूसरा सर मेरा यह सवाल है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अमेंडमेंट हुई थी, वेटिंग लिस्ट की जगह पे रिजर्व लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना था, SO 61, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है यहाँ पे उन्हें भी अभी तक वो स्टाइफन जो है वो नहीं मिल रहा है। और तीसरा सर अहम सवाल मेरा यह है कि हम तो सबकी स्टोरीज करते हैं, सबके इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है एंटायर अक्रॉस द ग्लोब अगर देखें शायद कश्मीर पहली जगह हो गया J&K जहां जर्नलिस्ट्स के लिए जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और थोड़ा सा अगर कोशिश की जाए कि मीडिया को थोड़ा यहाँ स्ट्रीमलाइन किया जाए, हालांकि हमने पिछले 3-4 साल से ये सवालात भी पूछे कि एटलीस्ट मीडिया को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए और ये पता चले जर्नलिस्ट कौन है। और मैं एक सप्लीमेंट्री पूछ लूं आपसे ताकि मैं, बिल्कुल सर। हाँ नहीं, अब स्ट्रीमलाइन किस तरह, क्योंकि फिर नहीं तो मुझे कहा जाएगा कि हम मतलब मीडिया को या तो थ्रॉटल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रीमलाइन ये कि अभी चूंकि हम डिजिटल दौर में है तो अब मल्टीमीडिया का दौर है, अब इस मल्टीमीडिया की रेस में यहाँ सब जर्नलिस्ट हैं,
तो अगर कोई बाहर कल तक रेडी पे था तो आजकल वो माइक लेके ऑफिस में जाता है, उसकी वजह से अच्छे जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी खत्म है। मुझे कोई एतराज नहीं है ना, अगर आप चाहें मैं आपकी तादाद कम कर सकता हूं। नहीं, तादाद कम नहीं कर रही है, बट स्ट्रीमलाइन करना I get that. Look, I understand that. But if there is a multiplication of organizations, it's not for me to tell who should be a journalist and who shouldn't. वो जहां जिनके लिए आप काम कर रहे हो उनको करना होगा ना। अब एक ना ठहरें, बिकॉज कल को फिर शिकायत होगी कि लेजिटिमेट मीडिया हाउसेस को जो है रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही है या रिकग्निशन नहीं दी जा रही है कि आपके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो अप्रूव नहीं हो रहे हैं। अब मैं आप ये मतलब मेरी तो पहले दिन से कोशिश थी कि आपका प्रेस क्लब जो है वो रिस्टोर हो जाए। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से वो इलेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज करें ताकि हम आपका प्रेस क्लब आपके हवाले कर सकें। एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिनके साथ हम कल बैठ के बात करके समझ सकें कि आपके मसले क्या हैं और उन मसलों का हमने हल किस तरह करना है। तो वो हो गया तीसरे सवाल का जवाब। पहला सवाल आपका था कि क्या हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो डिपार्टमेंट मेरे पास हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान के पास हो, हर किसी मिनिस्टर से कहा हुआ है कि वो अकाउंटेबिलिटी लें, पता करें कि ना इससे पहले क्या हो रहा था, सही क्या था, गलत क्या था। जो गलत था उसको दुरुस्त करना है, जो सही था उसको आगे चलाना है। ये तो मतलब हमारी पहले दिन से कोशिश रही है। और जो दूसरा सवाल आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से था, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से कह दूंगा क्योंकि जीएडी भी यही देखते हैं, वो आपको बता देंगे। आपको मालूम होगा कि पहले एक अभी मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अभी भी अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई क्लैरिटी की जरूरत है, कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, वो क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड मोहम्मद अली ट्राई कर लो। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन जो बोर्ड था, लेकिन आज सुबह ही एक फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट ने मुझे कॉल किया और रोते रोते उसने ये डिमांड की कि प्लीज़ आप ये सवाल जो है सीएम साहब रखते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर फायर एंड इमरजेंसी में जो तांदी हुई उसका रिपोर्ट भी आया और अब उसको एक और डाइवर्शन दिया गया एंटी करप्शन के लिए, तो उनके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, जबकि पिछले 4 साल से वो सड़कों पर अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। नंबर 1। नंबर 2, मेरा क्वेश्चन है डिप्टी सीएम साहब से, जो टेक्निकल एजुकेशन देखते हैं। सीएम साहब, आपने जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बनाए थे अपने दौर में, बहुत अच्छा स्टफ था, वेलकमिंग स्टफ, लेकिन आज कहीं ना कहीं पर वो टेक्निकल एजुकेशन कहीं नजर नहीं आ रहा। हर जगह पर अगर आप देखेंगे इस वक्त ऑल ऑफ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है सर, वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, क्लोज हो चुके हैं। कहीं पर भी आपको आज की डेट में प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। और इवन दो ऑल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो पूरे जेएनके में, उनमें भी एडमिशन जो है बिल्कुल किसी जगह पे 10 सीटें हैं, किसी जगह पे 5 सीटें हैं। और सबसे खास बात है, जो असासा हमारा था प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स, वो बिल्कुल जम्मू में भी बंद हो चुके हैं और कश्मीर डिवीजन में सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो क्लियर है ही नहीं। जो डिप्लोमा होल्डर्स है, जो मैट्रिक के बाद जो डिप्लोमा होल्डर्स है सर, उनकी कहीं पर एलिजिबिलिटी है ही नहीं। अगर वो इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद क्या वो 11th पास है, क्या वो 12th पास है। और आज की डेट में सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो ये है, जबकि एक बच्चा डिप्लोमा करता है उसको कहीं पर भी आपका जो ईडीआई है वो उनको कहीं पर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, ना उनके लिए कोई स्कीम है, ना उनके लिए कोई एलिजिबिलिटी है। ये सारी चीजें जो है इस वक्त अगर हमारा टेक्निकल, अगर गवर्नमेंट सर्विस है ही नहीं, हम बोलते हैं आप एक प्लीज। देखिए, आपका बड़ा जनरल क्वेश्चन है और सवाल है, और जहाँ तक ताल्लुक है आपकी सजेशन भी बीच में काफी सारे हैं। कभी आप मेरे पास आ जाएं, मुझे बता दें कहाँ पे है
और कुछ चीजें तो हमने वहाँ पे नोटिस की हैं, जो हमने देखा है, कुछ खामियां हैं, लेकिन आप अगर बीच में आगे में कुछ बताएं कि सजेस्ट करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक आपने फायर सर्विसेज के हवाले से बात की, हम भी चाहते हैं कि वो जो जिन्होंने ईमानदारी से वहाँ पे प्रोसेस जो है उसमें हिस्सा लिया और क्वालिफाई किया, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। एसीबी के पास मामला है, उसको शॉर्ट सर्किट नहीं किया जा सकता, उनको अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर धांधली है, अभी इससे पहले मुझसे सवाल पूछा गया कि जो आप अकाउंटेबिलिटी लाओगे या नहीं, यही एक तरीका है अकाउंटेबिलिटी लाने का। अगर कहीं धांधली हुई है, अगर कहीं पैसे की लेन देन हुई है, अगर कहीं पर रिक्रूटमेंट में इस तरह का हुआ है, तो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो उसके लिए कसूरवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने ईमानदारी से इस सिलसिले में हिस्सा लिया है उनको फिर अपनी नौकरी और इंसाफ मिल जाना चाहिए। रिक्वेस्ट प्लीज एक ही सवाल पूछें एंड ब्रीफ रखें बिकॉज़ देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। प्लीज ज़्यादा आशिक No, he didn't. One for the fraternity. Sorry, one for who and one for who? Something which is related to our fraternity. Achha, oh, sorry. Elected government. First of all, thank you for inviting. I think this is for the first time since 2019. I'm invited him officially. And most of my colleagues from economics and I want to know who the information director is. Probably someone who's standing there. It's good to see him for the first time. So, about the fraternity, off-page JK Information Department has been turned into an extension of JK Police. Has been, sorry. Has been turned into an extension or arm of a JK Police, in the sense JK Police decides which journalist who will attend the press conference, who will attend the dignitaries, rallies or their visits in JK. To the extent who is accredited journalist. If somebody was accredited for the last 20 years, 10 years, he is dropped out of the list and not being accredited this time. Just because there is a police verification which has been brought in, which is nowhere in the rest of the country. I can be an accredited Journalist if I apply in Delhi, but I can't be an accredited. As has been introduced in JNK. One. Second question, sir. You have won elections with a massive mandate for the first time, I think, since 83. I'm taking away 1996 credit from National Conference. With this mandate, sir, you went to Delhi. You had options to go to court or statehood, but you opted to go to Delhi to those people who snatched statehood from us. What was the thought process behind this decision? Going to the court. Well, first and foremost, the question with regard to the information department. Look, I know that there have been sort of complaints in the past in terms of journalists being accredited or invited to official functions. I think from at least this press conference, you can draw the inference that it's open to all of you to participate in, and we are not going to be sort of picking and choosing who we will speak to and who we won't. There has also in the past been this issue with regard to verification for accreditation. Soon after assuming office, even though as a union territory it's not within the sort of powers that are exercised by the elected government, I did have a conversation with the ADG in charge of CID to particularly talk about this issue of accreditation and CID verification. And I'm hoping that some of these complaints that have existed in the past will be done away with. I don't want to say more than that. Your second question was, what was the thought process behind going to Delhi rather than going to court? Simply that going to court would be a fight. A fight is never your first option. A fight should always be your last option.
Your first option is to remind Government of India of the promise they've made. If Government of India had not promised that statehood would be restored, if the Supreme Court had not talked about restoration of statehood at the earliest opportunity, then I guess our first option would have been the court. But given that the Prime Minister, Home Minister, others, whether in Parliament, whether in public meetings, whether in private meetings, they have committed themselves to restoring statehood to Jammu and Kashmir. Clearly, we have to give them the first opportunity to restore it. Every government or every individual has the right of recourse to courts, but that was never going to be our first option. It would always be the last one. Nasir Ganaya. Mr. Chief Minister, sir, last year in August, you said that it would be very difficult for you to become Chief Minister of JNT given Union Territory status. I'm not going to quote exact quote of yours, but 2 months now in power, how do you see yourself as a Chief Minister, as an empowered Chief Minister? And my second question is about, well, will you see any progress regarding appointment of editorial journals or the Queen of the Press Club, given the BJP saying all 39 departments are with the Chief Minister of Jammu and Kashmir, except the Home Department. Do we see progress on these issues? No, but it's a fact that all departments are with the elected government, other than law and order and security. There are parts of the Home Department also that the elected government looks after. So that is neither here nor there. I mean, how can I tell you that I see myself as an empowered Chief Minister if one of the first things I did was to remind Government of India to fulfill its promise of statehood? No Chief Minister of a Union Territory is as empowered as the Chief Minister of a No Chief Minister of a Union Territory is as empowered as the Chief Minister of a state. That is a fact. There's no point living in denial. If I was as empowered in a Union Territory as a state, why would I be bothered about getting statehood back then? I would be quite happy to continue as a Union Territory. But that is not the case, and which is why we want the promise and the commitment made to the people of Jammu and Kashmir fulfilled at the earliest. That's it. अब आप सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से एक विशेष धर्म को लेकर प्रचार किया जाता है, कश्मीर को लिंक करने की कोशिश की जाती है, तो कश्मीर की जो संस्कृति और धरोहर है उसको बचाने के लिए आप अगर सूफीज्म की बात करें तो कैसे आप बताइए सरकार? नहीं, सॉरी, सवाल का पहला हिस्सा क्या था? किसी विशेष धर्म के साथ धर्मनिरपेक्षता की हमेशा मिसाल रखी है। हमने तो बार बार इस चीज का सबूत दिया है। इसके लिए हुकूमत को कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद करते हैं। अब पिछले दिनों जब बर्फबारी हुई और हमारे जो मेहमान बर्फ के वजह से फंस गए थे, हुकूमत ने लोगों को मजबूर नहीं किया था कि वो अपनी दुकानें खोलें, अपने घर खोलें, अपनी मस्जिदें खोलें। लोगों ने खुद किया, अपनी मर्जी से किया, चाहे बानीहाल हो, चाहे काजीगुंड हो, चाहे गुंड और सोनमर्ग के इलाके में हो। लोगों ने इन मेहमानों को घरों गाड़ियों से निकाल के कहा कि आप मत करिए कोशिश, आइए हमारे घर में रात को रहिए, दूसरे दिन हम आपको सही सलामत श्रीनगर पहुंचा देंगे, बिना मजहब मिलत। और मैंने ये कहा, इसमें हम हुकूमत ने कोई इसमें उन लोगों पर दबाव नहीं डाला। ऐसा नहीं है कि डीसी हजरात ने या डिवकॉम साहब ने उन लोगों को कहा कि आप जबरदस्ती अपने मस्जिद खोलो या दुकानें खोलो या मकान खोलो। उन्होंने अपनी मर्जी से किया। यही जम्मू कश्मीर है और इसी जम्मू कश्मीर को लोग खुद बचाएंगे। हुकूमत को इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं होगी। जब जब इस चीज की जरूरत पड़ेगी लोग खुद ब खुद करेंगे। आपने स्लिप भेजा ना, आ जाएंगे, कोशिश करेंगे ना, आपके स्लिप तक पहुंच जाएंगे हम। Challenge, key challenge for your government ahead.
in terms of decision making or the resource locations like budget or the larger problems of state restoration? I mean, obviously, for us, the biggest challenge is to get statehood back. I mean, so much of what we want is tied to that. Then there are obvious challenges of day-to-day governance. Jammu and Kashmir operates a deficit budget. We spend more than we earn. Therefore, we are more dependent on Government of India than a lot of other states and territories. Delhi is a union territory, or is a state, but it's a hybrid state. It has a sort of peculiar government like ours, but they have a huge advantage that we don't have. They operate a surplus budget. We operate a deficit budget. That is a problem for us. We talked about electricity. Unemployment is a problem for us. Tourism is a huge opportunity for us. But at the moment, our tourism is limited to a handful of areas. Growing the areas that see tourist footfall, that is something we'd like to see. Growing tourism into parts of Jammu that are untouched but have a lot of potential, that is an area for us. And continuing to consolidate on an improving law and order and security situation, that also is something. Look, no security functionary functioned in isolation. So even though law and order and security are not part of the mandate of the elected government, it can't happen in isolation. Elected representatives, they fall apart, they play a part in this. Elected governments play a part in this. Our governance will have a bearing on the law and order and the peaceful conditions in Jammu and Kashmir. So all this becomes part of our challenge. सर 170 के बाद से ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास की धाराएं लग रही है और इसमें जम्मू कश्मीर में नेशनल खिलाफ नहीं है। मुझे ये बताइए सर, एक सवाल ये है कि जैसे रेलवे भी शुरू हुई और उसके बाद अभी सैटेलाइट वाला कॉल भी जो शुरू है, इसमें जो ये सितारे सैटेलाइट कॉल की लेकर मंदिर है इस विशेष वर्ग के समुदाय के लिए मंदिर है। फिलहाल तो मैं कहूँ ना, मेरे टेबल पे कोई सैटेलाइट कॉलोनी का प्रपोजल नहीं आया ना, और ये महकमा मैं संभाल रहा हूं। और बदकिस्मती से सबसे ज्यादा शोर इस सैटेलाइट कॉलोनी को लेके वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने बजट्स में उस वक्त न्यू श्रीनगर एंड ग्रेटर श्रीनगर, न्यू जम्मू, ग्रेटर जम्मू की बात की थी, जो हमारे सेक्रेटेरिएट को यहां से हटा के परिहासपुरा लेने की बात कर रहे थे। आज उनको नए ये सैटेलाइट कॉलोनी, जिस सैटेलाइट कॉलोनी का कहीं पे नक्शा भी नहीं बना है, उस पे लेके वो शोर मचा रहे हैं। नक्शा आने दीजिए ना, फिर हम बात करेंगे। ऐसा कोई प्रपोजल अभी गवर्नमेंट के सामने है भी नहीं। लेकिन आमतौर पे जब हम श्रीनगर के बाशिंदों से बात करते हैं, वो डीकंजेस्टन की बात करते हैं। वो कहते हैं ना, श्रीनगर शहर बहुत कंजेस्टेड हुआ है, यहां ट्रैफिक का मसला है, एक शहर के एक तरफ से दूसरे तरफ पहुंचने में अब कितना वक्त लगता है वो हमें मालूम है। हाउसिंग का एक मसला है। यहां डाउनटाउन के ऐसे घर हैं जहां 3-3, 4-4 फैमिलियां जो हैं वो बसी हुई हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनको मौका मिले तो वो शहर से बाहर निकलें। ये टाउनशिप जो है बाहर से लोगों को यहां बसाने के लिए नहीं होगा, अगर जब बनेगा वो श्रीनगर को डीकंजेस्ट करने के लिए, लोगों को एक मौका देने के लिए, जो देहात के इलाके छोड़ के शहर के नजदीक बसना चाहेंगे या जो शहर बीच छोड़ के एक खुली जगह में बसना चाहेंगे, उनके लिए होगा। लेकिन फिलहाल कोई ऐसा प्रपोजल, कोई ऐसा नक्शा, कोई ऐसी चीज जो है मेरे सामने या हुकूमत के सामने बन के नहीं आई है। आपने जम्मू कश्मीर के सेक्युलरिज्म की बात करी, तो देश में अभी भी धर्म के नाम पर तरह तरह की बहस रोज देखने को मिलती है। अभी आप कुछ दिनों पहले राजस्थान गए थे। सेक्युलरिज्म का एक सिंबोलिज्म ये भी माना जाता है कि पीएम मोदी हर साल चादर जो है वो भेजते हैं। आप कुछ हिंदू संगठन जो है वो इसके विरोध में है। आज शाम को पीएम को चादर भेजी है और वो इसका विरोध कर रहे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर होने की जो याचिका है वो कोर्ट में जो है वो कर लेते हैं। उस पर सुनवाई होगी, तब तक पीएम जो है वो वहाँ चादर ना भेजे। यूपी में अगर बात करें तो कुंभ महाकुंभ शुरुआत होने वाली है 13 जनवरी से, वहाँ पर
गैर हिंदुओं को चाय की दुकान और जूस की दुकान लगाने से मना किया जाएगा, तो क्यों आगे धर्म में अब क्या करें ना, धर्म को सियासत से अलग नहीं किया जा सकता। कहने के लिए तो हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, लेकिन नहीं होता ना। धर्म के बुनियाद पे वोट मांगे जाते हैं, धर्म के बुनियाद पे सियासत की जाती है। यह हकीकत है, इसको हमें तस्लीम करना होगा। अब वजीर आजम साहब दबाव में ना आए और चादर भेजें, यही हमारी उम्मीद होगी। सिर्फ एक ही धर्म के लोग अजमेर शरीफ नहीं जाते, जितने मुसलमान जाते हैं उतने ही गैर मुसलमान जाते हैं वहां पे। बहुत लोगों की जो है के जज्बात वहां से जुड़े हुए हैं। और जहां तक हर मस्जिद के नीचे अब लोग मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो शुक्र है इस चीज पे रोक लगाई है, वो ओवरऑल इसमें एक फैसले पे आएंगे, वो फैसला सब पे जो है लागू होगा। Hi sir, thank you for having me sir. So I want to talk about service verifications. Like many of the people, they are facing hurdles because of the unlawful activities by their relatives, which is obviously not in their control. So I want to know from you what is being done for them. Thank you. Well, more will be done for them when we are a state. Less can be done for them, at least at our behest, as a union territory. But taking an earlier answer a little further, when I talked about verification for credentials for media persons, in the same conversation that I had with the police official, I did talk about this CID verification for passports, for jobs and other things. Look, I've always said a militant's son is not a militant. It's unfair and it's not part of the law of natural justice to punish people because of something a family member of theirs did. Consciously, we did away with this whole blacklisting in our previous government. But it's only something that we can sort of advise or counsel the police department about at the moment. We can't instruct an order, but I do believe that there is some easing of this. There is scope for further. It will happen over time. So we have around 15 minutes left, so with your permission, we take 5 minutes. Sure. एक चलिए, आपको मैं लास्ट वाला आपको दे दूंगा। इन 5 के बाद छठा आपका होगा, देन विल वाइंड अप। सर वालेकुम। सर, मैं किसी पीडीडी या कोई टूरिज्म की बात नहीं करेगा। ये सब मेरे जितने भी यहाँ पे हुई थे, मेरे दोस्त ने मुझे बात की है, बहुत अच्छा किया है, मैं इसमें बड़ा आभारी हूँ। सर, हमारी कश्मीरी में कहावत है कि जो पैकेज मेरी वहाँ दर बदर है। सर, किसी ने आपकी बात नहीं की है। हम जिन मराहल से गुजर रहे हैं 2019 के बाद, जो हालत हमारी हुई है, ये पहली बार कोई यहाँ सिर्फ आपको देख के लाभकुशाई कर रहे हैं। तो पहली बार हमें किसी इवेंट और कॉन्फ्रेंस में बुलाया जा रहा है। तो सर, मीर्जा आशिफ साहब का काम है, जितना भी अप्रिशिएट कर